Hi guys, welcome back to my channel. In this video, we would be discussing the chapter first of your Indian economy, that is Indian economy on the eve of independence, important questions, PYQs and important topics. Now, I have already made a separate video on the whole chapter. I have covered the whole chapter in one shot, so please do watch that video. That is hardly of 25 minutes, that is within 25 minutes, I guess. So if you watch these two videos or the important questions and that the video of one shot, you are very good to go and you are well prepared for the chapter. Now let's just get into the video. So the important topics list are here. The first important topic is features of Indian economy on the eve of independence. This is a very important, very interesting, very easy also. What was the topic that I have discussed in the video? That is Indian economy was a stagnant economy, the weak industrialization, agriculture backwardness, rampant poverty, poor infrastructure, low per capita income. These are the features of what Indian economy on the eve of independence that you have to write. Okay. Now, zamindari system is again, this is also a very important question. This also we have covered in that video. That zamindari system was what? It was a triangular relationship between tillers, zamindar and British government. And the tillers were the landless labor. The zamindars were the owner of the land, and the British government was what? British government used to collect the land of correct the fixed sum of revenue from the zamindars, and the zamindar used to collect as much as they want from the tillers of the soil. Okay, so this was the zamindari system in detail. I have explained in that video. Now, development of railways. Firstly, why did the railways were made? And the most important question that is asked, that is in which year the railways is being made. Okay, the railways is being made. Then in this development of railways, you include that why the British government made railway, and what is the use of railways and the year of the railway. Now, drain of wealth. That means if the India was exporter of what? Exporter of raw material at the time of British rule. So whatever the money that used to come, where it used to be spent, that we have studied also this topic in the previous video, that the Britishers used to do the expense of war, then to create the central headquarter where in Britain. So they used to fund from India. Now, occupation structure on the eve of independence. You have already discussed that what agriculture sector had what dominance at the time of independence. 75% of population were dependent on agriculture sector, and your secondary and tertiary sector were at your primary, very inferior stages. They were just coming. Okay. Now, the previous year question, that is, I have just taken the key points that you have to have mentioned in your answer. So these are the key points. So what is the question that has came during the colonial period? Number of socio-economic indicators were dilapidated state. Were in a dilapidated state. Dilapidated state means dilapidated state means that पिछड़े हुए थे. ये सब कॉलोनियल पीरियड के समय, दैट मीन्स जब ब्रिटिश रूल का राज था, तो जो सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर थे, जो सोशल से तो रिलेटेड थे लेकिन वो इकोनॉमी पे भी इम्पैक्ट डालते थे, वो डिलैपिडेटेड स्टेट में थे, मीन्स वो पिछड़े हुए स्टेट में थे. तो ऐसे 3 इंडिकेटर, लिस्ट एनी 3 सच इंडिकेटर दैट लीड टू वर्सिंग द इंडियाज डेमोग्राफिक प्रोफाइल. सो ऐसे 3 इंडिकेटर के बारे में बताओ जो कि इंडिया के
जो कि इंडिया के डेमोग्राफिक कंडीशन को दिखा रहे थे. सो व्हाट आर दीज थ्री इंडिकेटर्स दैट आई हैव टेकन? दैट इज, फर्स्ट इज योर लिटरेसी रेट. जो लिटरेसी रेट तो ये सबको पता होगा. लिटरेसी रेट इज अंडरस्टूड दैट नंबर ऑफ पीपल हु नोज टू रीड एंड राइट, दैट वाज ओनली 16%. देन लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एक इंसान कितना दिन जिंदा रह सकता है, सो दैट इज 32 ईयर्स तक की एवरेज इंसान की लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी. Then infant mortality rate, that number of children that are alive per thousand, that is only 218. So ये demographic profile था इंडिया का colonial period के दौरान. Okay, now the second question is, state any two main cause behind infrastructure development by British rule. Infrastructure आप सबको पता है, जो buildings होती हैं, roads होते हैं, lands होते हैं, ये सब infrastructure development में आते हैं. तो आखिर वो लोग इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करा रहे थे, तो क्यों करा रहे थे? क्योंकि उनका मेन मोटिव इंडिया का डेवलपमेंट तो था नहीं. सो द मेन कॉजेस क्या था इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए? पहला तो इकोनॉमिक इंटरेस्ट था, किसका? ब्रिटिश रूल का इंडिया में. एंड दूसरा स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट था. दैट मीन्स वो लोग कुछ स्ट्रैटेजी बनाए थे जिसके लिए वो इंडिया में डेवलपमेंट कर रहे थे, जिससे उनकी ओन मदर कंट्री और ओन होम कंट्री का डेवलपमेंट हो रहा था. इकोनॉमिक इंटरेस्ट कैसे था? उन्होंने रेलवेज, रोड्स, पोर्ट्स, कैनाल्स ये सब बनाए थे ताकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो. आपने देखा है कि एक स्विस कैनाल बना था 1869 में, जो ब्रिटेन को इंडिया से डायरेक्ट रूट कनेक्ट कर रहा था. किसके थ्रू? वाटर के थ्रू. ऑफ कोर्स कैनाल है तो इससे क्या हो रहा था? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट रिड्यूस हो रहा था, मिनिमाइज हो रहा था, जिससे गुड्स और चीपर हो रहे थे ब्रिटेन के. नाउ स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट क्या था? बिल्ड ऑफ टेलीग्राफ टू कनेक्ट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री, that help them to control and govern the vast and diverse India territory. That means आप देखिए, जैसे कुछ लोग ब्रिटेन के थे, ब्रिटेन को रूल करना था इंडिया पे, तो कभी कभी कुछ इंफॉर्मेशन ब्रिटेन के हेड्स को मतलब ब्रिटिशर्स के हेड को ब्रिटेन में पहुंचानी होती थी. तो इसलिए उन्होंने इंडिया पे क्या टेलीग्राफ बिल्ड किया था और भी बहुत से कम्युनिकेशन सिस्टम बिल्ड किए थे, जिससे वो लोग मैसेजेस इजीली पहुंचा पाए. ओके. Now another PYQ is your silent feature of India's pre-independence occupation structure. Occupation structure आपको पता है कि हमारी पॉपुलेशन कौन से सेक्टर में डिपेंडेंट है, वेदर एग्रीकल्चर सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर. सो क्या फीचर्स थे? फर्स्टली, प्री डोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर. मोर देन 75% ऑफ हमारी पॉपुलेशन किस पे डिपेंडेंट थी? एग्रीकल्चर सेक्टर पे. तो वो एग्रीकल्चर सेक्टर जो था वो डोमिनेट कर रहा था. ओके. देन लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन इंडस्ट्री. इंडस्ट्री में बहुत कम अपॉर्चुनिटीज थी, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज थी. क्योंकि क्या होता था, अब उस टाइम पे आपने पढ़ा था, मैंने ये इससे पहले वाले वीडियो में बताया था, जो होल वीडियो था वन शॉट, उसमें बताया था कि जो इंडस्ट्रीज थी वो बहुत ही कम थी और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज तो एकदम नहीं थी. तो इंडस्ट्री में अपॉर्चुनिटी ही नहीं थी कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल पाए. फिर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन अमॉन्ग सेक्टर्स. ऑब्वियस सी बात है, एग्रीकल्चर सेक्टर 75% पॉपुलेशन को होल्ड करता था और जो सेकेंडरी और टर्शरी है वो तो एकदम पिछड़े हुए थे. योर सेकेंडरी बहुत पिछड़ा था और टर्शरी थोड़ा ग्रो कर रहा था एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस. ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर और रीजनल इम्बैलेंस था. ओके. देन मोस्ट नाउ दीज आर सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस. ये पीवाईक्यूज नहीं है, लेकिन इनके आने के चांसेस आपके प्री बोर्ड्स में काफी ज्यादा है. नाउ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन बाय ब्रिटिशर्स. अब ब्रिटिशर्स ने इतना काम कराया ही था, तो ऐसा पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन क्या था उनका इंडियन इकोनॉमी पे? पहला तो उन्होंने ट्रांसपोर्टेशन बिल्ड किया था, उन्होंने रोड्स बिल्ड किए थे, कैनाल्स बिल्ड किए थे, एंड योर रोड्स, योर रोडवेज बिल्ड की थी, ब्रिजेस बिल्ड किए थे, योर रेलवेज बिल्ड किया था. कमर्शियल आउटलुक था. आप देखिए इंडिया में कैसी प्रैक्टिस होती थी. फार्मर्स क्या करते थे, जो सबसिस्टेंस फार्मिंग करते थे, मतलब कि जो उगाया वो अपनी फैमिली के लिए उगाया और खुद ही खाया.
उन्होंने ब्रिटिशर्स ने कमर्शियल आउटलुक दिया फार्मर्स को कि आपने जो उगाया है वो आप हमको बेचो और उसके लिए आप फिक्स सम ऑफ रेवेन्यू मुझे दो। सो दैट वाज व्हाट कमर्शियल आउटलुक। तब फार्मर्स को पता चला कि हमने जो उगाया है वो हम सिर्फ खा नहीं सकते, हम बल्कि मार्केट में बेच सकते हैं। सो उन्होंने कमर्शियलाइज किया एक तरह से एग्रीकल्चर सेक्टर को। ना ग्रोथ ऑफ मॉनेटरी सिस्टम, इससे पहले बार्टर सिस्टम चलता था इंडिया में, ये तो आप सबको पता होगा। लेकिन ब्रिटिशर्स के आने के बाद से मॉनेटरी सिस्टम आया, एक रुपीस बना। ओके, न्यू अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब जब ब्रिटिशर्स ने रेलवेज बनाए, रोडवेज बनाए, तो उन बहुत लोगों को अपॉर्चुनिटीज भी मिली, उन्हें एम्प्लॉयमेंट भी मिला। कंट्रोल ऑफ फेमाइन, अब क्योंकि रेलवेज और ट्रांसपोर्ट सिस्टम हमारा हेल्दी हो चुका था, बहुत अच्छे से बन चुका था, तो इंडिया के कोने कोनों में फूड पहुंचाना इजी हो चुका था, तो उससे फेमाइन पे भी कंट्रोल आया। फेमाइन आपको पता होगा भूखमरी को कहते हैं। ओके, now another important question is critical appraisal praise some of the shortfalls of industrial policy pursued by the government. So ये सब क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, मैं आपको इजीली समझाती हूँ। क्वेश्चन कहता क्या है कि जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था वो किस तरीके से, जैसे आपको पता है, मैंने बताया था कि जो ब्रिटिशर्स ने इंडियन इकोनॉमी को 3 तरीके से तोड़ा था, एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड योर फॉरेन ट्रेड। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर किस वजह से टूटा था और क्या क्या रीजंस थे, उसके क्या क्या फीचर्स थे, वो पूछा है इस क्वेश्चन में। नाउ डीके ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी उसे फ्लरिश कर दिया गया, उसे तोड़ दिया गया। लिमिटेड ग्रोथ ऑफ पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर में उस टाइम बहुत ज्यादा भगदड़ थी। ओके, करप्शन था और पब्लिक एंटरप्राइजेस ज्यादा प्रॉफिट नहीं अर्न कर रहे थे। एब्सेंस ऑफ कैपिटल गुड इंडस्ट्री, उस टाइम पे सिर्फ एक ही इंडस्ट्री थी, दैट इज टाटा स्टील इंडस्ट्री, दैट वाज बिल्ट इन 1907। ओके, सो कैपिटल गुड इंडस्ट्री थी ही नहीं, देयरफॉर इंडस्ट्रीज इंडिया में लगाना मुश्किल था। ओके, क्योंकि कैपिटल ही नहीं था, देयरफॉर वो मशीनरी ले नहीं आए, उनको लाने के लिए वहां से एक्सपोर्ट करना पड़ेगा फॉरेन से, दैट वाज टू एक्सपेंसिव, देयरफॉर कोई कैपिटल गुड इंडस्ट्री नहीं थी। नाउ ब्लीक ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री, और मॉडर्न इंडस्ट्रीज भी बहुत थोड़ा थोड़ा ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल ग्रोथ कर रही थी। ओके, now let's come to our last slide, that is again of most important question, that is these are the one marker question that could come in your MCQs. Okay, that why was Suez Canal made? Suez Canal was made in 1869 to reduce transportation cost between India and Britain. Okay, what is the year of Great Divide? Year of Great Divide क्या है? Year of Great Divide specially हुआ कब था? 1921 में। और ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड के बाद जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो कभी डिक्लाइन नहीं हुई, वो तब से अभी तक बढ़ ही रही है और आगे भी बढ़ेगी। नाउ व्हाई डिड ब्रिटिशर फॉलो डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी? उन्होंने ये पॉलिसी क्यों लगाई? पहली बात तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल करना चाहते थे इंडिया पे, वो अपनी मोनोपोली लाना चाहते थे, किसकी? फॉरेन ट्रेड की, दैट मीन्स फॉरेन गुड की, अपने यहाँ की गुड की, मशीन मेड गुड की मोनोपोली इंडिया में लाना चाहते थे। और इंडिया मेक इंडिया इंडस्ट्रियलाइज। ओके, इंडिया इंडस्ट्रियलाइज दैट मीन्स यहाँ से रॉ मटेरियल उठा के, यहाँ पे इससे रॉ मटेरियल उठा के अपनी होम कंट्री में ले जाना। सो make India industrialize. Therefore, we have completed the video. Thank you so much for watching this video. एंड हम आगे ही फर्दरली और चैप्टर्स की, पहले चैप्टर ले आएंगे, वन शॉट ले आएंगे, देन उनके उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, PYQs ले आएंगे। सो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू दिस वीडियो सो दैट हम आगे भी ऐसे ही वर्क कर पाए। थैंक यू।